Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is actually the second part of CAT 24 LRDA series, right? Last session में we took up two sets, ठीक है? And उसको हमने solve करा था. So let's take up another set. Now this was a lengthy looking set, purely DI based set. इसमें आपको पढ़ना काफी था, right? Look like a case letter forms. Let's understand this particular set in depth. अगर तुम try करना चाहते हो, so pause this video, try this set first yourself. Here are actually the questions for this particular set, and let's understand this particular set. Now let's read this very carefully, right? जितना carefully इस particular set को हम read करेंगे उतना हमारा information यहाँ से निकलता जाएगा. This may look like very complicated set, but in fact it is simple आपका percentage calculation वगैरह इसमें concept involved था. So let's try to understand this. क्या दिया हुआ है? Two students, Amia and Ramya, are the only candidates in an election for the post of class representative. Students will vote based on the intensity level of Amiya's and Ramya's campaigns and the type of campaigns they run. So students will vote based on the intensity level of Amiya and Ramya's campaigns. पहला एक तो वो criteria है and the type of campaigns that they run. अब ये दो जो एक criteria वगैरह है या फिर type of campaign है intensity level है ये आगे जाके बहुत clearly उन्होंने describe कर रखा है. So let's read further. Each campaign is said to have a level of 1 if it is a steady campaign and a level of 2 if it is a vigorous campaign. Now, campaigns can be of two types. They can either focus on issues or on attacking the other candidate. So, दो bifurcation basically हमारा यहाँ दे रखा है. एक तो based on the levels. दो टाइप के हमारे लेवल हो सकते हैं, राइट? ईच कैंपेन कैन आइदर बी अ लेवल 1 कैंपेन और अ लेवल 2 कैंपेन. लेवल 1 को स्ट्रेट कैंपेन बोल रहे हैं, लेवल 2 को हम विगरस कैंपेन कर रहे हैं. सो लेवल 1 है, लेवल 2 हो सकता है. Then the campaigns, right? The campaigns in itself can be further divided into two parts. क्या हो सकता है? Campaign can either focus on issues or the campaign can attack the other candidate. दो टाइप के हमारे campaigns भी हो सकते हैं, राइट? यहां तक अपने को डेटा समझ में आया. अब किस तरीके से पुट करना है अभी फिलहाल ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज लिखना है यहाँ पे, तो वो अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? देन पहला, इफ अमिया एंड रम्या बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन अगर दोनों ही क्या करते हैं, इश्यूज पे फोकस करते हैं ना. दो टाइप के कैंपेन थे, दो टाइप के कैंपेन. एक दोनों इश्यूज पे फोकस करे, राइट? या फिर क्या करें, वो अटैक कर सकते हैं. तो उसमें भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हो सकता है अमिया जो है वो फोकस करे, रम्या फोकस करे, या फिर अमिया फोकस करे और रम्या अटैक करे, और अमिया अटैक करे और रम्या हमारा फोकस करे. और एक चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अमिया भी अटैक करे और रम्या भी क्या करे, अटैक करे. उन्हीं का बाइफर्केशन वगैरह अपने को क्या कर रखा है, समझा रखा है. सो देखो यहाँ पे अगले लाइन में क्या लिखा था, इफ अमिया एंड रम्या बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन the percentage of students voting in the election. Now total percentage of students actually voting in the election उसका information दिया हुआ है, will be 20 times the sum of the levels campaigning, 20 times the sum of the levels of campaigning of the two students. Example में दिया हुआ है, if Amiya and Ramya both run vigorous campaign. vigorous campaign का मतलब क्या था, लेवल 2 था. तो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2+2, क्योंकि लेवल का एडिशन, दोनों का लेवल क्या है, 2 है, तो उसका एडिशन, लेवल्स का एडिशन कितना हो गया, 2+2 4. तो 20 into 4, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल वोट इन द इलेक्शन. तो क्या बोला उसने, अगर दोनों कैंपेन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कैंपेन में अगर दोनों क्या कर रहे हैं, इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, सॉरी, तो उस टाइम पे क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the percentage of students who will be voting in the election will be 20 times what, 20 times the sum of the levels of the two students. तो अगर दोनों फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इसमें दिया है, अगर दोनों लेवल 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जब दोनों ही इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोटिंग इन द इलेक्शन विल बी 20 टाइम्स व्हाट, दोनों के लेवल्स का एडिशन, दैट इज 1+1, दैट इज कितना, सॉरी 2+2. अगर दोनों लेवल 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 4 into 20, 80% लोग वोट करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एक लेवल 1 पे ऑपरेट कर रहा है और एक लेवल 2 पे ऑपरेट कर रहा है, सो 1+2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20. तो ओवरऑल परसेंटेज हमारा कितना बन जाएगा, 20 into 3, 60%.
अदर वे राउंड में भी 60% आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला पर्सन लेवल 2 पे कर रहा है और सेकंड पर्सन हमारा लेवल 1 पे कर रहा है, तब भी 2+1 से 3, 3 × 20 60% हो जाएगा। सो 1+2, 2+1 दोनों में 60% आएंगे, तो इसके दो पॉसिबिलिटी होंगे। तीसरा पॉसिबिलिटी हो गया, फोर्थ जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर दोनों ही लेवल 1 पे ऑपरेट करेंगे तो 20 टाइम्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 1+1 अब की बार, और ये कितना हो जाएगा 22 40%। राइट। सो कहीं ना कहीं अब अपने को थोड़ा बहुत टेबल का आइडिया समझ में आ रहा है। ये कौन से सिनारे में होने वाला है, अगेन 4 टाइप के कैंपेन थे, उसमें से एक कैंपेन के अंदर 4 आपके पॉसिबिलिटीज बनेंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। विल कम टू द टेबल इन अ लिटिल वाइल। इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है। अमंग वोटिंग स्टूडेंट द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ द कैंपेन्स। फॉर एग्जांपल इफ अमिया रन्स अ स्टेट दैट इज लेवल 1 कैंपेन while Ramya runs a level 2 campaign, then Amya will receive 1/3 of the votes cast। ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन किस चीज का देना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल दोनों का मान लो मिला के 80% आया, 80% वोटर्स का टर्नआउट था, तो आउट ऑफ दैट 80% अमिया को कितना मिलेगा और रम्या को कितना मिलेगा। सिमिलरली दोनों का मिला के मान लो 60% आया, तो अम्या को कितना मिलेगा और रम्या को कितना मिलेगा। दैट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में और भी बाइफर्केशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये 80 तो सिर्फ हमारा क्या है, टोटल परसेंटेज वोट आउट, बट उसमें भी ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा उसका भी अपने को कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन हम यहां से डिड्यूस कर सकते हैं। राइट। एंड आगे जाके ये वाला जो पैराग्राफ इन्होंने डिस्क्राइब किया था, वो जैसे हमने बोला था ना स्टार्टिंग में 4 टाइप के कैंपेन होंगे। एक कैंपेन का टाइप ये पहला वाला था, इफ अमिया एंड रम्या बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, तो अगर दोनों फोकस कर रहे हैं तो ये बाइफर्केशन के रूल्स है। उसके बाद आगे जाके जो हमारे 3 पॉइंट्स है वो कब है, जब एटलीस्ट कोई एक क्या कर रहा हो, अटैक कर रहा हो, तो उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया यहां पे मेंशन कर रखे हैं। राइट, सो विल मेक 4 ब्रॉडर कॉलम्स और 4 रोज में ऑपरेट होने वाले डेफिनेटली। और जो हर एक ब्रॉडर कॉलम मैंने बोला उसमें भी हम टोटल और अमिया का परसेंटेज और रम्या का परसेंटेज ड्रॉ करेंगे। सो वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड मेक अ टेबल लाइक दिस। राइट, अपन क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला केस, लेट्स स्टार्ट राइटिंग वैल्यूज। जैसे फर्स्ट वाला केस क्या है, अमिया और रम्या है, सो ए भी क्या करेगा, फोकस करेगा, और आर भी क्या करेगा, फोकस करेगा। पहले हम फर्स्ट वाला ब्रॉडर कॉलम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अमिया फोकस करेगा, रम्या फोकस करेगा। ऑल्सो ये 4 बेसिकली हम रोज यूज करेंगे, किसके लिए, बिकॉज जो परसेंटेज आने वाला है वो किस पे डिपेंड होने वाला है, वेदर दोनों सेकंड सेकंड लेवल पे है, या फिर कोई 1 और दूसरा 2, या फिर पहला 2 दूसरा 1, या फिर दोनों जो है 1 1 पे ऑपरेट करेंगे। सो लेट्स ऑल्सो राइट दिस। सो लेट्स से अमिया का 2, रम्या का 2। सिमिलरली एक केस क्या बनेगा, अमिया सेकंड लेवल पे, लेट्स से रम्या फर्स्ट लेवल पे, या फिर अमिया फर्स्ट लेवल पे, रम्या सेकंड लेवल पे। एंड फाइनल पॉसिबिलिटीज, अमिया भी 1 पे और रम्या भी हमारा 1 पे। नाउ व्हाट वर द रूल्स, पहले वाला जो पूरा पैराग्राफ था उसमें हमारा लिखा हुआ था द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोटिंग इन द इलेक्शन, ये कब, जब दोनों ही क्या कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन इश्यूज, इस वाले में। तो टोटल है ए का परसेंटेज और आर का परसेंटेज। नाउ रूल क्या था, 20 टाइम्स सम ऑफ लेवल्स, पहले वो कर लेते हैं। सो टोटल क्या बन जाएगा इस वाले केस में, 20 टाइम्स 2+2, तो 2+2 इज 4, 20 टाइम्स 4 इज 80। परसेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बट परसेंटेज इग्नोर करते हैं, विल जस्ट रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देन यहाँ पे 2+1 3, 20 टाइम्स 3 इज 60, 2+1 इज 3, 20 टाइम्स 3 इज 60, 1+1 इज 2, 20 टाइम्स 2 इज 40। परफेक्ट। अब इसमें इन्होंने क्या समझाया था, लेट्स अगेन रीड दैट पार्ट, एक बार मैं वापस क्लियर कर दे रहा हूं। इसी सेम केस में अमंग द वोटिंग स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट विल बी proportional टू द लेवल ऑफ देयर कैंपेन्स। एग्जाम्पल पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल इफ अमिया रन्स अ लेवल 1 कैंपेन while Ramya runs a level 2 campaigns, then Amya will receive 1/3 of the votes cast and Ramya will receive the other 2/3। तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने 80% टोटल वोटर्स का टर्नआउट लिखा है, इसमें अम्या एंड रम्या का दोनों का 2-2 है ना लेवल, तो उनके लेवल के ही प्रपोर्शन में या रेशो, सिंपल समझ सकते हो, उसी रेशो में ये 80 क्या करेगा,
डिवाइड होने वाला है। तो अब यहाँ पे तो दोनों का सेम है, इक्वल है लेवल, तो ये 80 भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो ए को 40% मिलेगा, बी को भी, सॉरी नॉट बी, आर को भी, रम्या को भी कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। यहाँ पे 2:1 के रेशियो में 60 डिवाइड होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। यहाँ 40 है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, बिकॉज 1:1 है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज डन। देन अब हमें एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पार्ट पे आना है। इससे ऊपर वाला जितना था वी आर ऑलरेडी डन विद दैट, दैट इज परफेक्ट। अब ये जो हमारे तीन अलग अलग केसेस है, क्योंकि केसेस मेरे को समझ में आ रहा है स्टार्टिंग से कि क्या बनेगा, जैसे ए फोकस किया, आर फोकस किया, ए फोकस, आर अटैक, ए अटैक, आर फोकस, एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी वुड बी ए भी अटैक करेगा और आर भी अटैक करेगा। तो उसमें मेरे को रूल्स चाहिए ना, उसमें कितना कितना किसका परसेंटेज वगैरह आएगा, उसके लिए मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। वही इंफॉर्मेशन हमारे अब आगे जाके इन 3 पॉइंट्स में दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस फर्स्ट केस। If Amya runs a campaign attacking Ramya and Ramya runs a campaign focusing on issues, then, तो सेकेंड वाला पहले केस लिख लेता हूं। अमिया क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, सो ए इज एक्चुअली अटैकिंग एंड आर वुड बी फोकसिंग। पहला वाला पॉसिबिलिटी है। फिर से वही सेम टोटल लिखेंगे, ए का परसेंटेज और बी का परसेंटेज लिखेंगे। नाउ व्हाट आर द रूल्स, और एक बार में पढ़ के समझ लेंगे और उसको हम डायरेक्टली टेबल में इंप्लीकेट करेंगे। तो रूल्स क्या है, देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर अमिया, अदरवाइज वोटेड फॉर अमिया मतलब जो इनिशियल सिनेरियो था, जो हमारा, सॉरी, जो हमारा ये वाला सिनेरियो है, ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिनल सिनेरियो, जब दोनों ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो रूल क्या है, इफ अमिया रन्स अ कैंपेन अटैकिंग रम्या एंड रम्या रन्स अ कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन 10% of the students who would have otherwise voted for Amya will vote for Ramya। तो अमिया के लिए जितने भी लोगों ने वोट करा होगा, जितना भी परसेंटेज होगा एक तरीके से, उसका 10% क्या करेगा, रम्या में शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। एंड अनदर 10%, तो 10% प्लस 10% अमिया में से कम होने वाला है, एंड अनदर 10% हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर अमिया विल नॉट वोट एट ऑल। तो देखो दो चीज होगा, अमिया वाले शेयर में से, अमिया के शेयर में से 10% तो पहले तुम्हारा रम्या में शिफ्ट हो जाएगा, और अमिया के शेयर में से ही अगेन ओरिजिनल शेयर में से 10% विल नॉट वोट एट ऑल, वो एंटायर पिक्चर से ही क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। राइट, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर दिस। तो देखो सबसे पहले टोटल मत लिखना, ठीक है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हो क्या रहा होगा। तो अमिया वाले शेयर में जब अमिया अटैक कर रहा है और आर फोकस कर रहा है, तो अमिया में से 40 है ना उसका इनिशियल, आप उसको 100 लेके 40 भी अज्यूम कर सकते हो, 40% भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इस 40 में क्या चेंजेस होने वाले हैं कि 10% गायब होगा। इसमें से पहले 10% जाएगा किसमें, आर में, और इसका सेम 10% पिक्चर से ही निकल जाएगा। तो होगा क्या, नोटिस करो, इस 40 का 10% कितना आएगा, 4, तो आर में 4% और बढ़ जाएगा। राइट, आर में हमारा 4% और बढ़ जाएगा। इट्स दिस इज आर रम्या। तो आर का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44% में ही है, 44%। और इस 40 का 10% पे ओवरऑल से सिनेरियो से गायब हो जाएगा, तो 40 का अगेन 10% इज 4, तो 4 हमारा एक तरीके से नोटिस करोगे टोटल से भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 था, यहां पे ये जो 10% इधर शिफ्ट किया वो तो टोटल को चेंज कर नहीं रहा है। इस 40 में वो जो 10% हम पिक्चर से ही हटा दे रहे हैं वो टोटल में भी रिडक्शन हो जाएगा। सो 40 का 10% इज 4, तो यहाँ पे एक्चुअली में 76 है। ऑल्सो एवरीथिंग विल बी बैलेंस बिकॉज 76 माइनस 44 ये नंबर आना चाहिए। और ऐसे भी नोटिस करोगे तो 40 में से 10% और 10% गायब हुआ है, तो ओवरऑल 20% ए में से कम हुआ होगा। तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8, 40 माइनस 8 वुड बी 32। सो ये दोनों ऐड करके 76 भी आ रहा है। दैट इज द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम। इतना ही करना है, कैलकुलेटिव है, बट डेफिनेटली इफ यू गेट द लैंग्वेज करेक्ट, डेफिनेटली डोएबल। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन डू द सेम थिंग फॉर ऑल द 3 रोज, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द कैंपेन्स। ठीक है, सो 40 और 20 में 40 का अगेन सेम ही वैल्यू आएगा ना, 40 का 20% ओवरऑल कम होने वाला है, क्योंकि 10% इधर जाएगा और 10% गायब भी हो जाएगा। सो 40 का 20%, 8, उसमें से यहाँ पे 32 बचेगा। 40 का
10% 4, इधर 20 में ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 24, और 40 का 10% ओवरऑल, यहाँ पे ओवरऑल में भी से कम दिखेगा, और ऐसे भी ऐड भी कर सकते हो तुम, फिर कितना हो गया हमारा 56। देन इस 20 का भी कितना, 20 का 20% ओवरऑल कम हो जाएगा तो 4 कम हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, और 20 का 10% दैट इज 2 इसमें ऐड हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 42, एंड ये दोनों ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा हमारा 58, सो दिस हैज टू बी 58। ओवरऑल यहाँ पे 60 में से कितना कम होगा, 20 का 10% ही ओवरऑल में से कम हो जाएगा, तो दिस हैज टू बी 58। देन फाइनली यहाँ पे भी 20 है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, इसका 20% कम होगा, 20% वुड बी 4, 4 कम हो जाएगा 16 आ जाएगा, और इसमें से 10% इधर शिफ्ट हुआ होगा, सो 2 आएगा इसका 10%, तो 2 इधर ऐड हो जाएगा, सो यहाँ क्या आ जाएगा अपना 22, और ये दोनों ऐड अप करके हमारा कितना बनेगा 38। डन, दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड क्या है, इफ रम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अम्या and Amya runs a campaign focusing on issues, then 20% of the students who had otherwise voted for Ramya will vote for Amya, and another 5% would have who would have otherwise voted for Ramya will not vote at all. Now let's first write the combination for this. तो इस केस में क्या है, Ramya runs a campaign attacking Ramya and Amya runs a campaign focusing on issues. ठीक है, तो अब की बार Amya क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, so that is the second case. Amya is actually focusing, और आर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक, ए क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, और आर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, सो दिस विल बी टोटल, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी आर। अब रूल पढ़ लेते हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंगली बस अपने को चेंजेस कर रहा है, और चेंजेस इसी के अकॉर्डिंग होंगे जो ओरिजिनल था, कि उसमें से अब क्या चेंजेस होने वाला है। तो आर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ना, तो अब की बार क्या है, देन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर आर will vote for Amya, and another 5% who would have otherwise voted for R will not vote at all. So देखो एक चीज तो ये भी समझ में आनी चाहिए अपने को इस पर्टिकुलर सिनेरियो से, कि जो भी अटैक करेगा ना उसका परसेंटेज का ड्रॉप होगा हमेशा, दैट द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हियर। बट हाँ, इसमें डेफिनेटली नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या बोला है उसने, रम्या से, रम्या बिकॉज अटैक कर रहा है, तो 20% रम्या में से कम होके कहां जाएगा, अम्या में जाएगा, और रम्या में से फिर अगेन 5% जो होगा ओरिजिनल का, वो एकदम वोट ही नहीं करेगा, ठीक है, विल नॉट वोट एट ऑल। सिंपल से, मतलब पिछले वाला जैसे सिनारियो है, बट डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट पर्सन। नाउ 20 एंड 5 का नंबर याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। सो मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन जब 2-2 वाला इंटेंसिटी था, तो आर में से 40 में से ओवरऑल अगर मैं नोटिस करूँ आर का नंबर कितना चेंज होगा, तो 20% और 5%, हमेशा 25% कम होना है, तो इसमें से 25% दैट इज 1/4 कम होना है, तो आर का नंबर मैं डायरेक्टली लिखना चालू कर दूं, 1/4 कम होगा 30 बचेगा, 1/4 कम होगा 5 कम होगा तो 15 बचेगा, 1/4 कम होगा ओवरऑल तो 30 बचेगा, और यहाँ पे भी 1/4 दैट इज 5 कम होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा। नाउ इधर के 20% वोट एक्चुअली में इधर शिफ्ट होने वाले है ना, 20% वोट शिफ्ट होने वाले इधर, 20% इज 1/5, तो 1/5 करते चलेंगे और इधर ऐड करते चलेंगे, तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट 48, सो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा 78, राइट, दिस विल बी 78, और वैसे भी देखोगे तो 40 का 5%, तो 10% वुड बी 4, 5% वुड बी 2, तो 2 हमारा ओवरऑल पिक्चर में से कम होता सिर्फ, इसीलिए 80 में से 2 का ही रिडक्शन दिख रहा है। अगेन लेट्स डू द सिमिलर थिंग फॉर दिस। सो यहाँ पे 20 का 20% इधर शिफ्ट होगा, 20 का 20% वुड बी 4, 4 हमारा इधर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 44, इनका जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा 59 नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इस 40 का 20% इधर भेजो, 40 का 20% कितना हो जाएगा, वही सेम 8, तो 8 क्या हो जाएगा अब की बार इधर ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट 28 एंड दिस विल बी व्हाट 58। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 का 20%, 20 का 20% वुड बी 4, ठीक है, 20 का 20% वुड बी 4, तो 4 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 24, और एड अप कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 39। क्लियर, सो दैट इज 39, इधर से भी सेटिस्फाइड है बिकॉज 20 का 5% वुड बी 140 में से एक कम हो जाएगा ओवरऑल, दैट विल बी 39।
So that is the next scenario. And ideally, what we are actually going to see is that last scenario. और लास्ट सिनारो हमारा कौन सा होने वाला है? डेफिनेटली दोनों क्या करेंगे? अटैक करेंगे. सो लेट्स रीड दिस. इफ बोथ रन कैंपेन्स अटैकिंग ईच अदर, दोनों अटैक कर रहे हैं, देन 10% of the students who would have otherwise voted for them had they run campaigns focusing on issues overall, जो initial था, will not vote at all. इसमें shifting हो ही नहीं रही है. इसमें से दोनों में से क्या क्या हो जा रहा है? 10% कम हो जाएगा. तब दोनों में से अगर 10% कम होगा तो ओवरऑल भी हमारा 10% कम होगा. सो दिस इज सिंपल, राइट? ये बहुत सिंपल सिनेरियो हो गया. ए भी क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है. और आर भी क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है. राइट? बोथ आर एक्चुअली अटैकिंग. और फाइनली अगेन यही लिखता है, टोटल है, ए है और आर है. ये नंबर्स यूज करेंगे और 10% ओवरऑल कम करते जाएंगे. जैसे पहले टोटल में 80 का 10%, 8 कम हो जाएगा 72. 60 का 10%, 654. 60 का 10% अगेन 54. एंड 40 का 10% 4 कम हो जाएगा, दिस विल बी 36. इंडिविजुअल शेयर में भी 40 है, 10% कम हो जाएगा 36. इधर भी सेम ही है तो 36. 40 का 10% 4 कम 36. 20 का 10% 2 कम 18. 20 का 10% 2 कम 18. 40 का 10% 4 कम 36. And 20 and 20 दोनों सेम है, 10% कम, that is 18 and 18. And that is the final table we needed. That is it. अब इसी पर्टिकुलर टेबल को यूज करके अपने को क्या करना है? आंसर्स करने हैं. राइट? सो डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप ऑल दैट पेशेंस. नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, नंबर हाथ से कैलकुलेट करने वाले, यू डोंट नीड टू यूज अ कैलकुलेटर इन दिस. राइट? सो डेफिनेटली मे बी एग्जाम का ये थर्ड सेट भी हो सकता था, है ना? चलो, लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ ऑफ देम रन स्टेड कैंपेन. स्टेड कैंपेन्स का क्या मतलब था? स्टार्टिंग में दिया था लेवल 1 वाला. ठीक है? तो if both of them run level 1 campaigns attacking each other, then what is the percentage of students who will vote in the election? टोटल निकालना है तो बस वो रो एंड कॉलम देख लेते हैं. तो दोनों का 1-1 होगा और दोनों अटैक कर रहेंगे. तो दोनों अटैक यहाँ पे कर रहे हैं और दोनों का 1-1 लास्ट वाला रो है. देन व्हाट इज द परसेंटेज? 36. डन. फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल वोट इन द इलेक्शन? इस पूरे पूरे टेबल में व्हाट इज दैट मिनिमम परसेंटेज जो तुम्हें टोटल में दिख रहा है? तो यहाँ टोटल में 80, 60, 60, 40, 76, 56, 58, 38, 38 काफी कम हो गया है. 38 से भी क्या कुछ कम है? यहाँ तो नहीं है, बट यस अगेन सेम वैल्यू आपका आंसर में पहुंच जाएगा, दैट इज 36. राइट? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? 36. Question number 3. If Amia runs a campaign focusing on issues, then what is the maximum percentage of votes that she can get? तो अमिया फोकस कर रही है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना आ सकता है? तो अमिया हैज टू फोकस. अमिया हैज टू फोकस यहां पे दिख रहा है, अमिया हैज टू फोकस यहां पे दिख रहा है. तो अमिया का मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है? राइट? सॉरी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स शी कैन गेट. तो यहाँ पे अमिया का 40, 40, 20, 20 है. यहाँ पे 48, 44, 28 और 24 है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज शी कैन एक्चुअली गेट? 48. राइट? सो दैट इज द आंसर टू दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, 48. फोर्थ, इफ रम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अमिया. तो रम्या अटैकिंग अमिया है. ठीक है? रम्या अटैकिंग अमिया. तो रम्या अटैकिंग हमारा कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है. दिस इज रम्या अटैकिंग एंड ऑल्सो दिस इज रम्या अटैकिंग. तो इन दोनों केसेस से आंसर क्या करना है अपने को? देन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट दैट इज शी इज गारंटीड टू गेट? तो रम्या का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू गारंटीड तो रहेगा ही. ठीक है? तो इन दोनों केसेस में रम्या का मिनिमम कितना दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को मिनिमम दिख रहा है 15 और यहाँ पे मिनिमम कितना दिख रहा है मेरे को? 18. तो 15 इज दैट मिनिमम पॉसिबल, बिकॉज मुझे नहीं पता इन दोनों केसेस में से किससे आंसर निकलेगा. तो रम्या का मिनिमम पॉसिबल हैज टू बी व्हाट? 15%. Done. So this is 15%. Clear? Yes. रम्या का कितना है? मिनिमम 15 है. Okay. The last problem. What is the maximum possible voting margin with which one of the candidates can win? मार्जिन का मतलब दोनों के परसेंट में डिफरेंस है, अमिया और रम्या या रम्या माइनस अमिया, डिपेंडिंग ऑन हु इज एक्चुअली विनिंग. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन? सो अगेन पूरी टेबल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? विनिंग में यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है. ठीक है? 20 इज द करेंट मैक्सिमम. देन यहाँ पे देखो तो कम हो गया, दिस इज
12, this is also less, this is looking good. 16 एंड 42 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 26। तो इससे तो बड़ा ही आ गया। तो 26 मेरा करंट हाईएस्ट है, ठीक है। 16 एंड 42 का डिफरेंस, और रम्या वुड बी बीटिंग अमिया बाय अ मार्जिन ऑफ 26%। अगेन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 है। व्हाट अबाउट 44 एंड 15? दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज बेटर देन दिस 26। ये कितना हो गया हमारा? 29 है, यहाँ पे हमारा 29 है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी 18 है, ये 18 है, कम है, 18 है। सो 29 इज लुकिंग गुड। 29 इज द मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन with which one of the candidates can win. So that is 29. Right. So I hope you understood this particular set. Calculative set है, purely DI based set है, right? I hope you got this particular set. And now we are starting with our CAT 25 batch, Phoenix batch in January, right? 6th of January से start हो रहा है. The links of this particular batch are there in the description. You can definitely go and check out this particular batch. And also we are running a complete CMAT, Maharashtra City and CVT complete batch, right? That is also ongoing. 27 members से start हो गया था. You can also check out this particular batch. The links are there in the description, right? So we'll be doing one more session on this slot one. एक set हमारा और, sorry, actually दो set हमारे बचते हैं. So we'll be doing one more session and we'll be taking up both the remaining sets in the remaining session. Thank you guys for joining. Have a good day. Bye.